صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا صحابہ رزق کا بیان۔ حدیث نمبر 5001 ترجمہ مجھ سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عمش نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ ہم حمص میں تھے۔ ابن مسعود نے سورۃ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی۔ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرات کی تحسین فرمائی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا صحابہ رزق کا بیان۔ حدیث نمبر 5002 ترجمہ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عمش نے بیان کیا، کہا ہم سے مسلم نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ ابن مسعود نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور ان بھی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کا گھر بہت دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے اس علم کو حاصل کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا صحابہ رزق کا بیان۔ حدیث نمبر 5003 ترجمہ ہم سے حفص بن عمر بن گیس نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحیی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کو کن لوگوں نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 صحابیوں نے، یہ چاروں قبیلہ انصار سے ہیں، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ اس روایت کی مطابقت فضل نے حسین بن واقد سے کی ہے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس نے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا صحابہ رزق کا بیان۔ حدیث نمبر 5004 ترجمہ ہم سے مالی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثابت بنانی اور ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن مجید کو 4 صحابیوں کے سوا اور کسی نے جمع نہیں کیا تھا، ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔ انس نے کہا کہ ابو زید کے وارث ہم ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا صحابہ رزق کا بیان۔ حدیث نمبر 5005 ترجمہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو یحیی بن سعید قطان نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، ابی بن کعب ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں، لیکن ابھی جہاں غلطی کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بعض منسوخ التلاوت آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا ہے، میں کسی کے کہنے سے اسے چھوڑنے والا نہیں، اور اللہ نے خود فرمایا ہے، ما ننسخ من آیۃ او ننساھا نات بخیر منہا او مثلھا، کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں پھر یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5006 ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیی بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا مجھ سے حبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو سعید بن مالی نے کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا، پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے، یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا بیان۔
حدیث نمبر 5007۔ ترجمہ: مجھ سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے مبد بن سیرین نے اور ان سے ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی، خود ابو سعید، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دی تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ اور معمر نے بیان کیا، ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا ہم سے مبد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری نے یہی واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5008۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں سلیمان بن مہران نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں عبدال الرحمن بن یزید نے، انہیں ابو مسعود انصاری نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں سے جس نے بھی 2 آخری آیتیں پڑھیں۔ دوسری سند اگلی حدیث دیکھیں۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5009۔ ترجمہ: اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبدال الرحمن بن یزید نے اور ان سے ابو مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورۃ بقرہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5010۔ ترجمہ: اور عثمان بن حسم نے کہا کہ ہم سے عوف بن ابی جمیلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا۔ مفصل حدیث اس سے پہلے کتاب الوکالہ میں گزر چکی ہے۔ جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا، اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ بات آپ سے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورۃ کہف کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5011۔ ترجمہ: ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوا سحاق نے بیان کیا اور ان سے برا بن عازب نے کہ ایک صحابی اسید بن حضیر سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک طرف ایک گھوڑا 2 رسم سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورۃ فتح کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5012۔ ترجمہ: ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے والد اسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔
तीसरी मर्तबा फिर पूछा और जब इस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने आप को कहा, तेरी मुँह तुझ पर रोए। तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मर्तबा आजिज़ी से सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर्तबा भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बयान किया कि फिर मैंने अपनी औनटनी को दौड़ा और लोगों से आगे हो गया, आपके बराबर चलना छोड़ दिया। मुझे खौफ था कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाज़िल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। उन्होंने बयान किया कि मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाज़िल होगी। उन्होंने बयान किया, चुनाचा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आपको सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्र, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाज़िल हुई है जो मुझे उन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है जिन पर सूरज निकलता है। फिर आपने सूरतना फ़तहना लक फ़तह मबीना की तिलावत फरमाई। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सूरत कुल हवाला उहुद की फ़जीलत का बयान। इसमें उम्रा की हदीस बुवासता हज़रत आयशा रिज़्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5013। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान बिन अबी सुफयान ने, इन्हीं उनके वालिद अब्दुल्लाह ने और इन्हीं अब्बू सईद खदरी ने के एक सहाबी खुद अब्बू सईद खदरी ने एक दूसरे सहाबी क़तादा बिन नोमान अपने मुंजाए भाई को देखा कि वो रात को सूरत कुल हो अल्लाह आहद बार बार पढ़ रहे हैं। सुबह हुई तो वो सहाबी अबू सईद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया, गोया इन्होंने समझा कि इसमें कोई बड़ा सवाब ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत कुरान मजीद के 1/3 हिस्सा के बराबर है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सूरत कुल हवाला उहुद की फ़जीलत का बयान। इसमें उम्रा की हदीस बुवासता हज़रत आयशा रिज़्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5014। तर्जुमा और अबू ममर अब्दुल्लाह बिन इमरू मनक़री ने इतना ज़्यादा किया कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक बिन अनस ने, उनसे अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान बिन अबी सुफयान ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने कि मुझे मेरे भाई क़तादा बिन नोमान ने खबर दी कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहरी के वक्त से खड़े कुल हो अल्लाह आहद पढ़ते रहे, उनके सिवा और कुछ नहीं पढ़ते थे। फिर जब सुबह हुई तो दूसरे सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बाकी हिस्सा पिछली हदीस की तरह बयान किया। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सूरत कुल हवाला उहुद की फ़जीलत का बयान। इसमें उम्रा की हदीस बुवासता हज़रत आयशा रिज़्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5015। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम नफ़ी और ज़हाक मशरक़ी ने बयान किया और उनसे अब्बू सईद खदरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि क्या तुम में से किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि कुरान का 1/3 हिस्सा एक रात में पढ़ा करे। सहाबा को ये अमल बड़ा मुश्किल मालूम हुआ और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल वाहिद उस समद यानी कुल हो अल्लाह आहद कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा है। मोहम्मद बिन यूसुफ फरबरी ने बयान किया कि मैंने अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रा के कातिब अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अबी हातिम से सुना, वो कहते थे कि इमाम बुखारी रा ने कहा, इब्राहिम नफ़ी की रिवायत अबू सईद खदरी से मुनक़ते है। इब्राहिम ने अबू सईद से नहीं सुना, लेकिन ज़हाक मशरक़ी की रिवायत अबू सईद से मुत्तसिल है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब मऊज़ात की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 5016। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने और इन्हीं आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो मऊज़ात की सूरतें पढ़कर उसे अपने ऊपर दम करते, इस तरह के हुआ के साथ कुछ थूक भी निकलता। फिर जब मरज़ अलमूत में आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो मैं इन सूरतों को पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बरकत की उम्मीद में आपके जसद मुबारक पर फेरती थी। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब मऊज़ात की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 5017। तर्जुमा
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मफजल बिन फजाला ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अकील बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे रू ने बयान किया और उनसे अल मुमिनीन आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर कुल हो अल्लाह अहद, कुल आउज़ बरब अल फलक और कुल आउज़ बरब अल नास तीनों सूरतें मुकम्मल पढ़कर उन पर फूंकटे और फिर दोनों हथेलियों को जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फहराते थे। पहले सर और चेहरा पर हाथ फहराते और सामने के बदन पर। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा करते थे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब बोकत कुरात सकीना और फरिश्तों के नज़ूल का बयान। हदीस नंबर 5018। तर्जुमा और लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे यजीद बिन अलहाद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम ने कि असीद बिन हज़ीर ने बयान किया कि रात के वक्त वो सूरत अल-बक़रा की तिलावत कर रहे थे और उनका घोड़ा उनके पास ही बंधा हुआ था। इतने में घोड़ा बदकने लगा तो इन्होंने तिलावत बंद कर दी तो घोड़ा भी रुक गया। फिर इन्होंने तिलावत शुरू की तो घोड़ा फिर बदकने लगा। इस मर्तबा भी जब इन्होंने तिलावत बंद की तो घोड़ा भी खामोश हो गया। तीसरी मर्तबा इन्होंने तिलावत शुरू की तो फिर घोड़ा बदका। इनके बेटे यही चूंकि घोड़े के करीब ही थे इसलिए इस डर से कि कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इन्होंने तिलावत बंद कर दी और बच्चे को वहां से हटा दिया। फिर ऊपर नज़र उठाई तो कुछ ना दिखाई दिया। सुबह के वक्त ये वाक़या इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हज़ीर तुम पढ़ते रहते तिलावत बंद ना करते तो बेहतर था। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगा कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे यही को ना कुचल डाले, वो उससे बहुत करीब था। मैं सर ऊपर उठाया और फिर यही की तरफ गया। फिर मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो एक छतरी सी नज़र आई जिसमें रोशन चिराग थे। फिर जब मैं दोबारा बाहर आया तो मैंने इसे नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम भी है वो क्या चीज़ थी? असीद ने अर्ज़ किया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए करीब हो रहे थे। अगर तुम रात भर पढ़ते रहते तो सुबह तक और लोग भी इन्हें देखते, वो लोगों से छपते नहीं। और इब्न अलहाद ने बयान किया, कहा मुझसे ये हदीस अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने बयान की, उनसे अबू सईद खदरी ने और उनसे असीद बिन हज़ीर ने। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान की जल्द के दरमियान जो कुछ है रसूल अल्लाह का इसके अलावा और कुछ न छोड़ने यानी कुरान तर का रिसालत माब होने का बयान। हदीस नंबर 5019। तर्जुमा हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी ने बयान किया कि मैं और शदाद बिन मक़ल इब्न अब्बास के पास गए। शदाद बिन मक़ल ने उनसे पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के सिवा कोई और भी कुरान छोड़ा था? इब्न अब्बास ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मतलब जो कुछ भी छोड़ी है वो सब की सब उन दो गतों के दरमियान सहीफ़ा में महफूज है। अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी कहते हैं कि हम मोहम्मद बिन हनीफ़ा की खिदमत में भी हाजिर हुए और उनसे भी पूछा तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी वही मतलब छोड़ी वो सब दो दफ्तीरों के दरमियान कुरान मजीद की शक्ल में महफूज है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ की सब कलामों पर फजीलत का बयान। हदीस नंबर 5020। तर्जुमा हमसे अबू खालिद हदबा बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है संतरे की सी है जिसका मज़ा भी लजीज होता है और जिसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है, और जो मोमिन कुरान की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की सी है, इसका मज़ा तो उम्दा होता है लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती। और इस बदकार मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है रिहाना की सी है कि इसकी खुशबू तो अच्छी होती लेकिन मज़ा कड़वा होता है। और इस बदकार की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी नहीं करता अंदराइन की सी है जिसका मज़ा भी कड़वा होता है और इसमें कोई खुशबू भी नहीं होती। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ की सब कलामों पर फजीलत का बयान। हदीस नंबर 5021। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों गुज़री इमतों की उम्रों के मुकाबला में तुम्हारी उम्र ऐसी है जैसे असर से सूरज डूबने तक का वक्त होता है, और तुम्हारी और यहूद वाओ निसारी की मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स ने कुछ मजदूर काम पर लगाए और उनसे कहा कि एक क़ीरात मजदूरी पर मेरा काम सुबह से दोपहर तक कौन करेगा? ये काम यहूदियों ने किया।
फिर इसने कहा कि अब मेरा काम आधे दिन से असर तक एक ही क़ीरात मजदूरी पर कौन करेगा। ये काम निसारी ने किया। फिर तुमने असर से मग़रिब तक दो क़ीरात मजदूरी पर काम किया। यहूद व निसारी क़यामत के दिन कहेंगे हमने काम ज़्यादा किया लेकिन मजदूरी कम पाई। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुम्हारा कुछ हक़ मारा गया? वो कहेंगे कि नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि फिर ये मेरा फ़ज़ल है, मैं जिसे चाहूँ और जितना चाहूँ अता करूँ। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान की वसीयत पर अमल करने का बयान। हदीस नंबर 5022। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फ़रीबी ने बयान किया, कहा हमसे मालिक बिन मुगुल ने कहा हमसे तलहा बिन मसरफ़ ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सवाल किया नबी करीम ने कोई वसीयत फ़रमाई थी? इन्होंने कहा कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया फिर लोगों पर वसीयत कैसे फ़र्ज़ की गई कि मुसलमानों को तो वसीयत का हुक्म है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत नहीं फ़रमाई। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह को मजबूती से थामे रहने की वसीयत फ़रमाई थी। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब किसी शख्स का कुरान शरीफ से बेपरवाह होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि क्या इन्हीं काफ़ी नहीं है कि हमने तुझ पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है। हदीस नंबर 5023। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने, उनसे अकील ने, उनसे शहाब ने बयान किया, कहा कि मुझको अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई चीज़ इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बेहतरीन आवाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना है। अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन का एक दोस्त अबदाल हमीद बिन अबदाल रहमन कहता था कि इस हदीस में यतगनी बिलकुरान से ये मुराद है कि अच्छी आवाज़ से इसे पुकार कर पढ़े। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब किसी शख्स का कुरान शरीफ से बेपरवाह होने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि क्या इन्हीं काफ़ी नहीं है कि हमने तुझ पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है। हदीस नंबर 5024। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन आवाज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ते सुना है। सुफियान बिन ईना ने कहा यतगनी बिलकुरान से मुराद है कि कुरान पर क़नाअत करे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान पढ़ने वाले पर रश्क का बयान। हदीस नंबर 5025। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, रिश्क तो बस दो ही आदमियों पर हो सकता है, एक तो इस पर जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद का इल्म दिया और वो इसके साथ रात की घड़ियों में खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहा, और दूसरा आदमी वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे मुहताजों पर रात दिन खैरात करता रहा। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान पढ़ने वाले पर रश्क का बयान। हदीस नंबर 5026। तर्जुमा हमसे अली बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, इन्होंने कहा मैंने ज़कून से सुना और इन्होंने अबू हरीरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए, एक इस पर जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और वो रात दिन इसकी तिलावत करता रहता है कि उसका पड़ोसी सुनकर कह उठे कि काश मुझे भी इस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी इसकी तरह अमल करता, और वो दूसरा जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक़ के लिए लिटा रहा है, इसको देखकर दूसरा शख्स कह उठता है कि काश मेरे पास भी उसके जितना माल होता और मैं भी इसकी तरह खर्च करता। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब उस शख्स का सबसे बेहतर होने का बयान जो कुरान करीम सीखे या किसी को सिखाए। हदीस नंबर 5027। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, कहा कि मुझे अलक़मा बिन मरसिद ने खबर दी, इन्होंने साद बिन अबीदा से सुना, इन्होंने अबू अब्दुर्रहमान सलमी से और इन्होंने उस्मान बिन अफ़ान से, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। साद बिन अबीदा ने बयान किया कि अबू अब्दुर्रहमान सलमी ने लोगों को उस्मान के ज़माना खिलाफत से हुज्जाज बिन यूसुफ के इराक़ के गवर्नर होने तक कुरान मजीद की तालीम दी। वो कहा करते थे कि यही हदीस है जिसने मुझे इस जगह कुरान मजीद पढ़ाने के लिए बिठा रखा है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब उस शख्स का सबसे बेहतर होने का बयान जो कुरान करीम सीखे या किसी को सिखाए।
हदीस नंबर 5028। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अलक़मा बिन मरसिद ने, उनसे अबू उबैदा रहमन सलमी ने, उनसे उस्मान ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। सही बुखारी। किताब फ़िज़ाइल कुरान। बाब उस शख्स का सबसे बेहतर होने का बयान जो कुरान करीम सीखे या किसी को सिखाए। हदीस नंबर 5029। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हबा कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे औरतों से निकाह की कोई हाजत नहीं है। एक साहब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनका निकाह मुझसे कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इन्हें महर में एक कपड़ा ला के दे दो। इन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे तो ये भी मैसर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इन्हें कुछ तो दो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। वो इस पर बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके पास ये भी ना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुमको कुरान कितना याद है। इन्होंने अर्ज़ किया कि फ़लन फ़लन सूरतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने तुम्हारा उनसे कुरान की उन सूरतों पर निकाह किया जो तुम्हें याद हैं। सही बुखारी। किताब फ़िज़ाइल कुरान। बाब कुरान शरीफ बग़ैर देखे पढ़ने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 5030। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने, उनसे सहल बिन साद ने कि एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को हबा करने के लिए आई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर नज़र नीची कर ली और सर झुका लिया। जब इस खातून ने देखा कि उनके बारे में कोई फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया तो वो बैठ गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक साहब उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ उनका निकाह कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे पास कुछ महर के लिए भी है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर जाओ और देखो शायद कोई चीज़ मिले। वो साहब गए और वापस आ गए और अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मुझे वहाँ कोई चीज़ नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर देख लो, एक लोहे की अंगूठी ही सही। वो साहब गए और फिर वापस आ गए और अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, लोहे की एक अंगूठी भी मुझे नहीं मिली, अलबत्ता ये एक तहबंद मेरे पास है। सहल कहते हैं कि उनके पास कोई चादर भी ओढ़ने के लिए नहीं थी। इस सहाबी ने कहा कि खातून को इसमें से आधा फाड़ कर दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इस तहबंद का वो किया करेगी। अगर तुम उसे पहनते हो तो उसके काबिल नहीं रहता और अगर वो पहनती है तो तुम्हारे काबिल नहीं। फिर वो साहब बैठ गए। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जाते हुए देखा तो बुलवाया। जब वो हाजिर हुए तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें कुरान मजीद कितना याद है? इन्होंने बतलाया कि फ़लन 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 सूरतें मुझे याद हैं। इन्होंने उनके नाम गुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम इन्हें ज़बानी पढ़ लेते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें कुरान मजीद की जो सूरतें याद हैं इनके बदले में मैंने इसे तुम्हारे निकाह में दे दिया। सही बुखारी। किताब फ़िज़ाइल कुरान। बाब कुरान शरीफ पढ़ने और इसकी हमेशा तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5031। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें नाफा ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान की मिसाल रस्सी से बंधे हुए के मालिक जैसी है और वो इसकी निगरानी रखेगा तो वो उसे रोक सकेगा वरना वो रस्सी तड़वा कर भाग जाएगा। सही बुखारी। किताब फ़िज़ाइल कुरान। बाब कुरान शरीफ पढ़ने और इसकी हमेशा तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5032। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने और उनसे मंसूर बिन मुतमर ने पिछली हदीस की तरह।
मोहम्मद बिन अररा के साथ इसको बशर बिन अब्दुल्लाह ने भी अब्दुल्लाह बिन मुबारक से, इन्होंने शोबा से रिवायत किया है, और मोहम्मद बिन अररा के साथ इसको इब्न जरेज ने भी अब्दा से, इन्होंने शकीक से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से ऐसा ही रिवायत किया है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ पढ़ने और इसकी हमेशा तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5033। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का पढ़ते रहना लाजिम पकड़ लो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ऊँट के अपनी रस्सी तड़वा कर भाग जाने से ज़्यादा तेज़ी से भागता है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सवारी पर कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5034। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्वायास ने खबर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मगफल से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के दिन देखा कि आप सवारी पर सूरत अल-फ़तह की तिलावत फरमा रहे थे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का बयान। हदीस नंबर 5035। तर्जुमा मुझसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि जिन औरतों को तुम मुफस्सल कहते हो वो सब मुहकम हैं। इन्होंने बयान किया कि इब्न अब्बास ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरी उम्र 10 साल की थी और मैंने मुहकम औरतें सब पढ़ ली थीं। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने का बयान। हदीस नंबर 5036। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शीम ने बयान किया, कहा हमको अबू बशर ने खबर दी, इन्हीं सईद बिन जबीर ने और इन्हीं इब्न अब्बास ने कि मैंने मुहकम औरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सब याद कर ली थीं। मैंने पूछा कि मुहकम औरतें कौन सी हैं? कहा कि मुफस्सल। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ भूल जाना और ये कहना कि मैं फ़लन आयत भूल गया, जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जल्द ही हम तुझे पढ़ाएंगे, फिर तो हरगिज़ ना भूलेगा मगर जो अल्लाह चाहेगा। हदीस नंबर 5037। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन उबैद बिन मैमून ने बयान किया, कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने इजाफ़ा के साथ बयान किया कि मैंने फ़लन सूरत की फ़लन आयतें भला दी थीं। मोहम्मद बिन उबैद के साथ इसको अली बिन मसहर और अब्दा ने भी हश्शाम से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ भूल जाना और ये कहना कि मैं फ़लन आयत भूल गया, जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जल्द ही हम तुझे पढ़ाएंगे, फिर तो हरगिज़ ना भूलेगा मगर जो अल्लाह चाहेगा। हदीस नंबर 5038। तर्जुमा हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को रात के वक्त एक सूरत पढ़ते हुए सुना तो फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे, उसने मुझे फ़लन आयतें याद दिला दी जो मुझे फ़लन औरतों में से भला दी गई थीं। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ भूल जाना और ये कहना कि मैं फ़लन आयत भूल गया, जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जल्द ही हम तुझे पढ़ाएंगे, फिर तो हरगिज़ ना भूलेगा मगर जो अल्लाह चाहेगा। हदीस नंबर 5039। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के लिए ये मुनासिब नहीं कि ये कहे कि मैं फ़लन आयतें भूल गया, बल्कि उसे यूँ कहना चाहिए कि मैं फ़लन आयतों को भला दिया गया। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सूरत बकरा या फ़लन सूरत कहने में कोई हरज ना होने का बयान। हदीस नंबर 5040। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम ने बयान किया, उनसे अलक़मा और अबदाल रहमान बिन यजीद ने और उनसे अबू मसूद अंसारी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल-बक़रा के आखिर की 2 आयतों को जो शख्स रात में पढ़ लेगा वो इसके लिए काफ़ी होंगी। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब सूरत बकरा या फ़लन सूरत कहने में कोई हरज ना होने का बयान। हदीस नंबर 5041। तर्जुमा
ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کو رو بن زبیر نے مسعود بن مخرمہ اور عبدال الرحمن بن عبدالقاری سے خبر دی کہ ان دونوں نے عمر بن خطاب سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ میں ان کی قرات کو غور سے سننے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے بہت سے طریقوں میں تلاوت کر رہے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا تھا۔ ممکن تھا کہ میں نماز ہی میں ان کا سر پکڑ لیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر لپیٹ دی اور پوچھا، یہ سورتیں جنہیں ابھی ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ان سورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہ سورتیں پڑھائی ہیں جو میں نے تم سے سنی۔ میں انہیں کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خود سنا کہ یہ شخص سورۃ الفرقان ایسے قرات سے پڑھ رہا تھا جس کی تعلیم آپ نے ہمیں نہیں دی ہے، آپ مجھے بھی سورۃ الفرقان پڑھا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہشام، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے اسی طرح اس کی قرات کی جس طرح میں ان سے سن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اب تم پڑھو۔ میں نے بھی اسی طرح قرات کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 قسم کی قاف راتوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہارے لیے جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب سورت بقرہ یا فلن فلن سورت کہنے میں کوئی حرج نہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 5042۔ ترجمہ، ہم سے بشر بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، کہا ہم کو ہشام بن رو نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس نے مجھے فلن فلن آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں نے فلن فلن سورتوں میں سے چھوڑ رکھا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور دوسرا قول وقرانہ فرقنا لتقرا علی علنا سلیم کس ترتیل سے پڑھنے کی دلیل ہے، شروع کی طرح جلد جلد نہ پڑھا جائے۔ امام بخاری لفظ یا فرق کی تفسیر تفصیل سے کی ہے اور ابن عباس نے فرقنا کی تفسیر فصلنا سے کی ہے۔ حدیث نمبر 5043۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، کہا ہم سے واصل حدب نے، ان سے ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا کہ ہم ان کی خدمت میں صبح سویرے حاضر ہوئے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ رات میں نے تمام مفصل سورتیں پڑھ ڈالیں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود بولے، جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھتے ہیں تم نے ویسے ہی پڑھ لی ہوگی۔ ہم سے قرات سنی ہے اور مجھے وہ جوڑ والی سورتیں بھی یاد ہیں جن کو ملا کر نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ 18 سورتیں مفصل کی ہیں اور وہ 2 سورتیں جن کے شروع میں ہم ہے۔ صحیح بخاری، کتاب فضائل قرآن، باب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور دوسرا قول وقرانہ فرقنا لتقرا علی علنا سلیم کس ترتیل سے پڑھنے کی دلیل ہے، شروع کی طرح جلد جلد نہ پڑھا جائے۔ امام بخاری لفظ یا فرق کی تفسیر تفصیل سے کی ہے اور ابن عباس نے فرقنا کی تفسیر فصلنا سے کی ہے۔ حدیث نمبر 5044۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبداللہ حمید نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تحرک بلسانک لتجل آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں۔ بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی یاد کرنے میں بہت بار پڑتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو سورۃ لا اقسم بیوم القیامہ میں ہے نازل کی کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں، یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، تو جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں، پھر آپ کی زبان سے اس کی تفسیر بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ سر جھکا لیتے اور جب واپس جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ نے آپ سے یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے دل میں جمع دینا، اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے، پھر آپ اس کے موافق پڑھتے۔
सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब अल्फाज खींचकर तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5045। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया कहा हमसे जरीर बिन हाजिम अज़दी ने बयान किया कहा कि हमसे क़तादा ने बयान की मैंने अनस बिन मालिक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान मजीद के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को खींचकर पढ़ते थे जिनमें मद होता था। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब अल्फाज खींचकर तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5046। तर्जुमा हमसे इमरू बिन आसिम ने बयान किया कहा हमसे हमाम ने बयान किया उनसे क़तादा ने कि अनस से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात कैसी थी। इन्होंने बयान किया कि मद के साथ। फिर आपने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा और कहा कि बसम अल्लाह में अल्लाह की लाम को मद के साथ पढ़ते, अर्रहमान में मीम को मद के साथ पढ़ते और अर्रहीम मिहा को मद के साथ पढ़ते। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब आवाज़ को घुमाकर कुरान मजीद की तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 5047। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कहा हमसे शोबा ने बयान किया कहा हमसे अब्वायास ने बयान किया कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मगफल से सुना इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी यौंग पर सवार होकर तिलावत कर रहे थे, सवारी चल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-फतह पढ़ रहे थे, या रावी ने ये बयान किया कि सूरत अल-फतह में से पढ़ रहे थे, नरमी और आहिस्तगी के साथ क़ुरात कर रहे थे और आवाज़ को हलक़ में दोहराते थे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब खुशलहानी से कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5048। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन खलफ अबू बकर असक़लानी ने बयान किया इन्होंने कहा हमसे अबीही हमानी ने बयान किया इन्होंने कहा हमसे बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा ने बयान किया उनसे उनके दादा अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू मूसा तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज़ अता की गई है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब दूसरे शख्स से कुरान शरीफ पढ़वा कर सुनने का बयान। हदीस नंबर 5049। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया कहा हमसे हमारे वालिद ने उनसे अमिश ने बयान किया उनसे इब्राहीम ने बयान किया उनसे अबीदा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान मजीद पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया मैं आपको कुरान सुनाऊँ, आप पर तो कुरान नाज़ल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुरान मजीद दूसरे से सुनना महबूब रखता हूँ। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान करीम पढ़वा कर सुनने वाले को बस बस कहने का बयान। हदीस नंबर 5050। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया उनसे अमिश ने उनसे इब्राहीम ने उनसे अबीदा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँ, आप पर तो कुरान मजीद नाज़ल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुनाओ। चुनाचा मैंने सूरत निसा पढ़ी। जब मैं आयत फ़िकी फ़ज़ा जिना मन कल आमा बशीद व जना बकली हौला शहीदा पर पहुँचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी थे।